Good afternoon, students. Here I am Parvez Ahmed, and I am addressing class 12th students. For last day, I had begun the first chapter of our supplementary reader Vistas third level. As I had made you all introduce the theme of the lesson, the epitome of the lesson, and I had explained the first few paragraphs of this chapter line by line. So today I decided to connect with you to carry on this chapter, the third level. The first chapter of this lesson is talking about a psychology of the human being, where the writer Jack Finney has made us know that this world is different from we think the world which we live in. As art provides a convenient medium, it transcends the harsh realities of the contemporary world. In the third level, Jack Finney interviews fantasy and reality. Naturally, this leads to an intersection of time and space in the story. In fact, the story constantly moves between the past and the present. And here is the story of a man named Charlie. He is 31 years old. He lives in New York. The word of New York is not the word of Galesburg, Illinois. Actually, the modern word of New York is full of insecurity, fear, war, worries, and stress. And generally, people like Charlie are unable to cope with the harsh reality of modern life. They just want to escape. And actually, the third level is nowhere, but Charlie found it a convenient medium of escape from this modern world. And it is nothing, as his psychiatrist friend explained him, that it is nothing but a waking dream wish fulfillment. I had explained the first few paragraphs of this chapter. Now I try to explain the further paragraphs, and you will have to see line by line to understand every word and line of this lesson, because it is not very easy, somewhat complicated to understand. तो जब चार्ली ने अपने मित्र साइकेट्रिस्ट मित्र को अपनी बात बताई, तो उसने इसको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन किया कि वो एक साइकोलॉजिकल कंडीशन का सामना कर रहा है, जिसको उसने वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट नाम दिया, क्योंकि वो टिकट भी इकट्ठा करता था। और ये कहा जाता है साइकोलॉजी में कि जो व्यक्ति टिकट इकट्ठा करता है वो एक्चुअली एक स्केपिस्ट होता है, एक पलायनवादी होता है। लेकिन चार्ली ने इस पर ये तर्क दिया कि उसके दादा भी टिकट कलेक्ट करते थे, और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रूजवेल्ट भी टिकट कलेक्ट करते थे, लेकिन वो तो स्केपिस्ट नहीं थे। खैर, ये बात बीत गई। आगे कहता है चार्ली, एनीवे, here is what happened at Grand Central. One night last summer, I worked late at the office. I was in a hurry to get uptown to my apartment, so I decided to take the subway from Grand Central
because it is faster than the bus. एक दिन क्या हुआ कि रात की बात है, पिछली गर्मी की, और उसने देर तक ऑफिस में काम किया चार्ली ने, और वो अपने घर जल्दी पहुंचना चाहता था। तो उसने बस लेने के बजाय ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के सबवे में जाने का इरादा किया ताकि वो घर जल्दी पहुंच जाए। नाउ आई डोंट नो वाई दिस शुड हैव हैपन टू मी। वो कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। आई एम जस्ट एन ऑर्डनरी गाय नेम चार्ली। मैं भी एक सामान्य सा आदमी हूँ, चार्ली नाम का, 31 ईयर्स ओल्ड, एंड आई वॉज वेयरिंग ए टैन गैब्रेडिन सूट। मैं एक भूरे रंग का गैब्रेडिन सूट पहने हुए था, एंड ए स्ट्रॉ हैट विद ए फैंसी बैंड, और एक सजा हुआ, फैंसी बैंड मीन्स एक सजा हुआ भूसे का बना हुआ हैट पहने हुए था। आई पास्ड ए डोजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। मैं लगभग दर्जन लोगों के अगल बगल से गुज़रा जो मेरे ही तरह लगते थे। एंड आई वॉज नॉट ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम एनीथिंग। और उस समय चार्ली ये कहता है कि उस समय वो किसी भी चीज़ से एस्केप करने की कोशिश नहीं कर रहा था। बिल्कुल सामान्य सा आदमी था, सामान्य तरीके से, ऑर्डिनरी तरीके से ही वॉज गोइंग टूवर्ड्स टू हिज होम वर्ड, एंड एज टू रीच होम अर्ली ही डिसाइडेड टू टेक सबवे। I just wanted to get home to Louisa, my wife. His wife name was Louisa, and he wanted to get there as early as possible. I turned into Grand Central Station and Vanderbilt Avenue. Vanderbilt मार्ग से, Vanderbilt Avenue एक मार्ग का नाम है, वहाँ से वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन की तरफ मुड़ा। I went down the steps at the first level. सीढ़ियों से उतरकर वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के फर्स्ट लेवल पे गया। Where you take trains like the 20th century, जहाँ आपको 20वीं सदी की ट्रेन की तरह मिलती है, जैसे 20वीं सदी में ट्रेनें चलती थी। Then I walked down another flight to the second level. फिर मैं दूसरी सीढ़ी उतरकर दूसरे लेवल तक पहुँचा। Where the suburban trains leave from, दूसरे लेवल से सब अर्बन ट्रेन्स, उपनगरीय ट्रेन चलती थी। लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं होती थी, नगर में ही ट्रेनें चलती थी, नगर के आसपास। डग्ड इनटू एन आर्च डोरवे हेडिंग फॉर द सबवे। सबवे की ओर जाने के लिए मैं एक आर्च डोरवे, एक घुमावदार मेहराबदार डोर से नीचे झुककर अंदर पहुंचा, और जैसे ही मैं नीचे झुककर अंदर पहुंचा, आई गॉट लॉस्ट, मैं खो गया। आज चार्ली कहता है कि वहाँ से वो खो गया, उसको वो मार्ग नहीं मिला जो मार्ग उसे सब अर्बन ट्रेन की तरफ ले जाती थी, बल्कि वो किसी और मार्ग की ओर चला गया। दैट इज़ इट इज़ ईजी टू डू, ये करना आसान था। आई हैव बीन इन एंड आउट ऑफ ग्रांड सेंट्रल 100 ऑफ टाइम्स। सैकड़ों बार वो ग्रांड सेंट्रल स्टेशन गया था, बाहर निकला था, उसी आर्च डोरवे से होकर वो गुज़रा था, अंदर ट्रेन की तरफ बढ़ा था। सैकड़ों बार उसने किया था, ये उसका करना आसान था। बट आई एम ऑलवेज डम्प्ड इनटू न्यू डोरवेज एंड स्टेयर्स एंड कॉरिडोर्स। लेकिन जैसे ही हमेशा वो उस आर्च डोरवे से अंदर जाता था, उसे नए दरवाजे, नई सीढ़ियाँ और नए कॉरिडोर मिल जाते थे। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. एक बार तो एक वो सुरंग में चला गया था, लगभग 1 मील लंबा सुरंग था, और जब वो बाहर आया तो अपने आप को रूजवेल्ट होटल के लॉबी में पाया। एक बार और, another time I came up in an office building on 46th street. एक बार तो वो एक 46 स्ट्रीट के ऑफिस बिल्डिंग के अंदर पहुंच गया, उसी सब आर्च डोरवे के अंदर घुसकर। 3 ब्लॉक्स अवे, वो
3 मोहल्ले दूर था वहाँ से, ग्रांड सेंट्रल स्टेशन से। जैसे हमारे यहाँ मोहल्ला होता है, वैसे वहाँ अमेरिका में, न्यूयॉर्क में ब्लॉक्स होते हैं। समटाइम्स, आगे देखिए स्टूडेंट्स, समटाइम्स आई थिंक ग्रांड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक ए ट्री। कभी कभी चार्ली सोचता था कि ग्रांड सेंट्रल स्टेशन ऐसे बढ़ रहा है जैसे कोई पेड़ हो, जैसे पेड़ की शाखाएं बढ़ती हैं, ब्रांचेस, वैसे जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के रास्ते, मार्ग बढ़ते चले जाते थे। पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयरकेस लाइक रूट्स। जैसे पेड़ों की जड़ नहीं बढ़ते हैं, उसी तरह से ग्रांड सेंट्रल स्टेशन एक पेड़ की तरह उसे अपीयर हो रहा था, जिसमें नए नए कॉरिडोर्स और नए नई सीढ़ियाँ निकलती आ रही थीं। देयर इज़ प्रॉबेबली ए लॉन्ग टनल, संभवतः एक लंबा सुरंग था, दैट नो बडी नोज, जिसे कोई नहीं जानता था, अबाउट फीलिंग इट्स वे अंडर दैट सिटी राइट नाउ, जिसे कोई नहीं जानता था, उस अनुभव के बारे में नहीं जानता था कि इट्स वे अंडर द सिटी राइट नाउ, कि इस समय शहर के नीचे से भी कई रास्ते कई जगह पे पहुंचने के लिए हैं। जैसे ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर, मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, and maybe because for so many people through the years Grand Central has been an exit means कई सालों तक ग्रांड सेंट्रल स्टेशन कई लोगों के लिए अलग अलग जगह पे पहुंचने का एक एग्जिट था, ए वे ऑफ एस्केप, पलायन करने का एक मार्ग था। मे बी दैट इज़ हाउ द टनल आई गॉट इनटू, हो सकता है कि जिस टनल में मैं घुसा था वो टनल मेरे लिए भी एक एस्केप का रास्ता हो। बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया, लेकिन उस टनल से एस्केप कर जाने के आइडिया के बारे में मैंने कभी अपने दोस्त को नहीं बताया। तो इस पैराग्राफ में चार्ली एक अपनी जो एस्केप की अपनी जो साइकोलॉजिस्ट कंडीशन है उसके बारे में बता रहा है कि जिस तरह वो घर पहुंचने के लिए जल्दी कर रहा था, उस तरह से उसने सबवे का रास्ता लिया क्योंकि वो घर जल्दी पहुंचना चाहता था। तो ही गोज़ डाउन द स्टेप ऑफ फर्स्ट लेवल, देन ही वॉक्स डाउन टू द सेकेंड लेवल where the suburb trains leaves from. He enters an arched doorway heading for the subway and gets lost. जैसे ही उसने उस मेहराबदार दरवाजे में प्रवेश किया, वैसे ही वो वहाँ खो गया। It's very easy to get lost at the Grand Central Station. वो ये कहना चाहता है ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में खो जाना बहुत आसान है। और ये जो कहता है कि खो जाना आसान है, यही इशारा करता है कि चार्ली इज़ अ मैन ऑफ escapism. The Grand Central is growing like a tree when he feel that Grand Central Station was growing like a tree. It was pushing a new corridors and staircase like routes. He has been in outer for the Grand Central Station hundreds of times. Once he got into the tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. And another time, he came up in an office building on 46th Street. For so many people, the Grand Central Station has been an exit, a way of escape. बहुत से लोगों के लिए अलग अलग जगह पर पहुंचने का एक एग्जिट था, और बहुत से लोगों के लिए ग्रांड सेंट्रल स्टेशन का ये सबवे एक एस्केप का मार्ग था। आगे बताता है उस थर्ड लेवल के लोकेशन को, उस थर्ड लेवल के अपीयरेंस को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगन एंगलिंग लेफ्ट, जिस कॉरिडोर में मैं घुसा वो बाईं ओर मुड़ रहा था, एंड स्लेटिंग डाउनवर्ड्स, और ढाल के रास्ते बनाते हुए नीचे की ओर वो मार्ग जा रहा था,
एंड आई थॉट दैट वॉज रॉन्ग, मैंने सोचा कि ये तो गलत था। बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, मैंने सोचा कि ये रास्ता गलत था, मैं गलत जा रहा था, लेकिन मैं चलता रहा। ऑल आई कुड हेयर वॉज द एम्पटी साउंड ऑफ माई ओन फुट स्टेप्स, कोई एक आवाज़ नहीं आ रही थी, केवल मेरे अपने ही पैरों की चलने की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी। एंड आई डिड नॉट पास ए सोल, मुझे एक आदमी तक नहीं मिला। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ हॉलो रोर अहेड, दैट मीन्स ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग, फिर मुझे कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिससे कोई दूर बात कर रहा हो, जो आवाज़ गूंज रही हो, और जिससे मुझे पता चला कि इस जगह खाली नहीं है, वहाँ आगे कुछ लोग हैं जो बात कर रहे हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, वो सुरंग एक तीखे दाईं ओर घूमा। आई वेंट डाउन ए शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैंने एक छोटा सा जीना सीढ़ियाँ उतरा। एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल एट ग्रांड सेंट्रल स्टेशन, और जब उस टनल से मैं निकला तो मैं सीधा ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल तक पहुंच गया। फॉर जस्ट ए मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन ए सेकेंड लेवल, पहले तो मुझे कुछ क्षण के लिए लगा कि मैं वापस सेकेंड लेवल पे पहुंच गया था। बट आई सा द रूम वॉज स्मॉलर, लेकिन मैंने देखा कि कमरे कुछ छोटे छोटे थे। देयर वर फीवर टिकट विंडोज़ एंड ट्रेन गेट्स, वहाँ पे टिकट की खिड़कियाँ बहुत कम थीं और ट्रेन के गेट बहुत कम थे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज वुड एंड ओल्ड लुकिंग, और जो पूछताछ केंद्र था जहाँ पे सूचनाएं मिलती हैं, वो छोटा था, पुराने चलन का बना हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था। एंड द मैन इन द बूथ वोर ए ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, और वो आदमी जो बस में इंफॉर्मेशन बूथ में बैठा था, वो आदमी की आंखें हरी थी, आंखों को ढकने का एक शीट था उसके ऊपर, एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर, और एक लंबा आस्तीन था जो प्रोटेक्टर की तरह काम करता था। द लाइट्स वर डिम, रोशनी मध्यम थी, सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, हिल रही थी। देन आई सा वाई दे वर ओपन फ्लेम गैस लाइट, वो रोशनी क्यों हिल रही थी, जब मैंने देखा तो पाया कि वो ओपन फ्लेम गैस लाइट जलाए हुए थे। सो स्टूडेंट, यू विल हैव टू revise and understand these paragraphs for today, and I will make you read the next paragraphs of this chapter tomorrow. Till then, have a nice day, and don't forget to subscribe this channel, and you will find I will upload the assignments through this YouTube channel. In the description you will find the link, you will have to open it to find the assignments on your screen. So study must be carried on because of the time span which we have been given to cover the syllabus is very precious, and don't forget to use your time prizefully and carefully. Don't go outside, stay at home and work as according with your labor. Thank you very much.